ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਗਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ਤਿੰਦਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਮਨੋਤਰੀ, ਫਿਰ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਰੀਨਾਥ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ। ਅੱਛਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਉਦੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਬਰਸਾਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ 40,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਲਈ, ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, GMVN ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਗੜਵਾਲ ਮੰਡਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਨਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ 30-150 ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਦਰੀ ਜੰਗਲੀ ਬੇਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1803 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਅੰਦਰ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੰਬੂਦਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਹਾਂ, ਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵਸੂਧਾਰਾ, ਚਰਨਾ, ਭੀਮਪੁਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1918 ਤੋਂ 1926 ਤੱਕ ਕੋਈ 125 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ। 125? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 53 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ EIA ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਕਪਾਲ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ, EPI 2022 ਵਾਲੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਟਰੈਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ BSNL ਤੇ Jio ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ, 11 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹੀ ਸੀ, 26.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ये सोचने वाली गल है। खुशामदीद, आज हम 2025 की चार धाम यात्रा पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास काफी मवाद है, मज़ामीन है, कुछ रिसर्च और नोट्स भी, जो इस आप कह लें अहम यात्रा की मंसूबाबंदी, इसकी तारीख, अहमियत और हाँ जो चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक, माहौलियाती, रूहानी, उन सब का अहाता करते हैं। जी बिल्कुल, और हमारा मकसद यूं समझें कि उन लोगों के लिए जरूरी मालूमात फराहम करना है जो या तो इस मुकद्दस सफर की प्लानिंग कर रहे हैं या शायद सिर्फ इसे बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं। हम इसके अमली पहलुओं पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में इसके गहरे माने और आजकल जो खदशात है उन पर भी बात होगी। ठीक है, तो आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ये यात्रा मतलब उत्तराखंड हिमालय में चार मुकद्दस मकामात हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जी, और रिवायती तौर पर ये मगरिब से मशरिक की तरफ होती है। ठीक, मतलब यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर खत्म। बिल्कुल सही। और देखें, इसकी तारीखी और रूहानी जड़ें बहुत गहरी हैं। 8वीं सदी के अजीम फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, उनका किरदार बहुत अहम माना जाता है इस यात्रा की बहाली में, खास तौर पर बद्रीनाथ की तंजीम नौ के हवाले से। अच्छा, बद्रीनाथ से तो कई कहानियां भी जुड़ी हैं। जैसे कहते हैं कि ये जगह भगवान विष्णु ने शिवजी से हासिल की थी, और नाम के बारे में भी कि बद्री नामी जंगली बेरी वहाँ होती थी, उस पर नाम पड़ा। दिलचस्प। और गंगोत्री? गंगोत्री का ताल्लुक तो जाहिर है देवी गंगा के जमीन पर उतरने की मशहूर कहानी से है। सही। अच्छा, तो 2025 की यात्रा के लिए क्या कुछ खास है? सुना है रजिस्ट्रेशन अब लाजमी है। जी हाँ, 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लाजमी है, और ये बायोमेट्रिक होगी, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स या शायद आइरिस स्कैन इस्तेमाल हो सकता है। और ये ऑनलाइन भी हो सकेगी, जो सरकारी वेबसाइट है, और कुछ जगहों पर जैसे ऋषिकेश या हरिद्वार वहाँ ऑफलाइन काउंटर्स भी होंगे। शिनाख्ती कार्ड जैसे आधार, वोटर ID या पासपोर्ट वो तो साथ रखना ही होगा। ठीक। और वक्त, पहाड़ों का मौसम तो आप जानती हैं काफी गैर यकीनी होता है, कौन सा वक्त बेहतर है? हाँ, वक्त का ऐसा है कि मई, जून और फिर बाद में सितंबर, अक्टूबर, ये महीने बेहतरीन है। जुलाई, अगस्त में तो मानसून होता है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत ज्यादा। जी। और नवंबर के बाद फिर शदीद बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो रास्ते बंद हो जाते हैं। इन महीनों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो तैयारी के लिए क्या मशवरे हैं? क्या क्या चीजें लेकर जाएं? देखें, गर्म कपड़े तो जरूरी हैं ही, बारिश से बचाव का सामान मतलब रेनकोट या पोंचो, जूते बहुत अहम हैं, अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, और हाँ, एक बुनियादी मेडिकल किट। जी। इस किट में खास तौर पर ऊंचाई की बीमारी यानी एल्टीट्यूड सिकनेस की दवाएं जरूर शामिल करें। इसकी अलामत आपको पता है, सर दर्द, मतली, थकावट, ये सब हो सकता है। तो इससे बचने का तरीका? बस आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई करें और पानी खूब पिएं, ये मदद करता है। और रिहाइश का भी, जैसे GMVN के गेस्ट हाउस हैं या प्राइवेट होटल, वो पहले से बुक करवा लेना बहुत बेहतर है, वरना वहाँ जाके मुश्किल हो सकती है। और वहाँ पहुँचने के जराए सिर्फ सड़क है या कुछ और भी? नहीं, सड़क तो है ही, लेकिन हेलीकॉप्टर की सहूलत भी है कुछ जगहों के लिए, जैसे केदारनाथ। और पैदल न चल सके तो पालकी और घोड़े भी मिल जाते हैं। आपने ऊंचाई की बीमारी का जिक्र किया, तो क्या ये सफर जिस्मानी तौर पर बहुत मुश्किल है? बिलाशुबा आसान नहीं है। खास तौर पर देखें, केदारनाथ का ट्रैक तकरीबन 16 किलोमीटर पैदल है, और यमुनोत्री का भी कोई 6 किलोमीटर है, तो अच्छी फिटनेस तो चाहिए ही चाहिए। 16 किलोमीटर काफी ज्यादा है। जी, मतलब आपको अंदाजन 6 से 8 घंटे मुस्तकिल चढ़ाई चढ़ने के काबिल होना चाहिए केदारनाथ के लिए। तो जिस्मानी चैलेंजेस तो हैं ही, लॉजिस्टिक्स के हवाले से क्या मुश्किलात आ सकती हैं? हाँ, लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हैं, जैसे दूर दराज इलाकों में टिब की सहूलियात वो महदूद हो सकती है। सड़कों की हालत, जैसा कि पहले कहा, मौसम और लैंड स्लाइडिंग की वजह से कभी भी खराब हो सकती है। तो बेहतर है कि सफर से पहले ताज़ा सूरत हाल मालूम कर लें और 1-2 दिन इजाफी लेकर चलें। और फोन वगैरह का क्या हिसाब है? नेटवर्क रहता है? ये भी एक मसला है। मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह अच्छी नहीं होती। अमूमन BSNL और जियो बेहतर काम करते हैं दूसरे नेटवर्क्स के मुकाबले में। तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें, और अगर मुमकिन हो तो अलग अलग नेटवर्क की सिम रख लें। ठीक है, ये तो हुए मौजूदा चैलेंजेस। इस खित्ते में क्या तारीख में भी ऐसे कोई बड़े खतरात रहे हैं? जी, तारीख में तो ऐसी मिसालें मिलती हैं। एक बहुत मशहूर वाकया रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुए का है। ओह हाँ, सुना है उसके बारे में। जी, जिसने 1918 से 1926 के दौरान सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 125 से ज्यादा लोगों को हलाक किया था। इससे इलाके में शदीद खौफ व हैरास फैला था। ये वाकया अगरचे पुराना है, लेकिन हिमालय के माहौल की सख्ती और गैर मुतवक्कोपन की याद जरूर दिलाता है। वाकई। अच्छा, ये तो हुए सफर के अमली पहलू। अब जरा वसीतर तनाजुर पर बात करते हैं। इस यात्रा का माहौलियात पर क्या असर पड़ रहा है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। चार धाम प्रोजेक्ट, जो सड़कें चौड़ी करने का मंसूबा है, उस पर काफी तनकीद हुई है। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि इतने बड़े 900 किलोमीटर के मंसूबे को 53 छोटे-छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अच्छा, क्यों? ताकि एक जामिया माहौलियाती असरात का जायजा यानी EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी जरूरत से बचा जा सके। ये एक इल्जाम है। ये तो तशवीश की बात है, खासतौर पर जब हम भारत की मजमूई माहौलियाती कारकर्दगी देखते हैं। बिल्कुल, ये बातें काबिल जिक्र हैं कि 2022 का जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI था, उसमें भारत 180 मुमालिक में आखिरी नंबर पर था। आखिरी नंबर पर? जी, तो ये रैंकिंग
और ये हकीकत कि हमारे यहाँ फितरत की पूजा की इतनी कदीम रिवायत है, ये सवाल जरूर उठाती है कि क्या 4 धाम जैसे मुकद्दस मकामात पर ये जो यात्रियों की तादाद बढ़ रही है, क्या ये माहौलियाती तौर पर पायदार है? बद्रीनाथ के करीब अलकनंदा नदी की सतह में भी गैर मामूली इजाफे के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। माहौलियाती खदशात तो बहुत संजीदा हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस यात्रा का एक बड़ा माशी पहलू भी तो है। जी हाँ, बिल्कुल। मजहबी सियाहत मईशत के लिए बहुत अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 में इस शोबे ने तकरीबन 1.34 लाख करोड़ रुपए कमाए और मुस्तकबिल में तो और भी इजाफे की तवक्को है। हुकूमत की स्कीम्स भी हैं, जैसे PRSAD स्कीम। हाँ, PRSAD, पिलग्रमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। जी बिल्कुल, इसका मकसद मुकद्दस मकामात की तरक्की है। सकाफती तौर पर भी तो ये जगह बहुत मुनफरिद है ना? है, बहुत ज्यादा। जैसे बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो रिवायती तौर पर केरला के नंबूदरी ब्राह्मण खानदान से होते हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम था। जी, और वहाँ के गर्म पानी के चश्मे हैं तपत कुंड, और एक माता मूर्ति का मेला भी लगता है, वो भी अहम है। केदारनाथ में भी जो 2013 में तबाहकुन सैलाब आया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर तामीर नो का काम हुआ है। और हाल ही में कोई तनाज़ो भी था शायद किसी मंदिर की तामीर पर। हाँ, एक खबर आई थी कि दिल्ली में एक नया मिलता जुलता केदारनाथ मंदिर बनाने का मंसूबा है। उस पर उत्तराखंड के कुछ पुजारियों ने एतराज किया है। उनका मौकफ ये है कि ये असल मंदिर की जो तकदीस है उसे कम करने की कोशिश है और शायद माली फायदे के लिए है। हम यहाँ सिर्फ उनके खदशात बयान कर रहे हैं, इस पर कोई फैसला नहीं दे रहे। समझ गया। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? मतलब 4 धाम यात्रा एक बहुत ही कसीर जहती तजुर्बा है, जिस्मानी तौर पर मुश्किल, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से पेचीदा, रूहानी तौर पर बहुत गहरी, और हाँ, अब माहौलियाती सवालात से भी जुड़ी हुई। बिल्कुल, आपने सही खुलासा किया। और यहीं से एक आखिरी सवाल या एक सोच जहन में आती है कि एक तरफ तो इस यात्रा की इतनी अजीम रूहानी अहमियत है, लाखों लोग खिंचे चले आते हैं, और दूसरी तरफ इसी खित्ते की माहौलियाती नज़ाकत है जो हमने EPI रैंकिंग और मुकामी वाकयात में देखी। तो सवाल ये है कि ये जो जदीद तरक्की की ज़रूरियात हैं और ये जो कदीम यात्रा की रवायत है, ये दोनों हिमालय के इस हसास माहौल में पायदार तरीके से एक साथ कैसे चल सकती हैं? इसमें यात्रियों की और इंतजामिया की क्या मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है? ये वो सवाल है जिस पर शायद सबको सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज वो दिव्य ज्ञान हाजिर है जो हिमालय की गोद में छिपा है। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पहुंचते ही लगे कि आप स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं? एक ऐसी जगह जिसे धरती पर वैकुंठ कहा जाता है। उसकी कहानी कितनी गहरी और पवित्र होगी। चलिए आज उस एहसास को जीते हैं और चलते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और शांति का एक जीता जागता समंदर है। ये पवित्र धाम नर और नारायण नाम के 2 शक्तिशाली पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के पवित्र किनारे पर बसा है। जरा कल्पना कीजिए, एक जमाने में यहाँ तक पहुँचना एक खतरनाक सपना हुआ करता था, और पहले विश्व युद्ध के समय यहाँ पुजारियों के लिए सिर्फ 20 कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, और आज यहाँ हर साल 6 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, जबकि 1961 में ये संख्या सिर्फ 90,000 थी। सोचिए, कुछ ही दशकों में आस्था का ये सैलाब कितना बढ़ गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये स्थान की बढ़ती हुई दिव्य शक्ति और लोगों के अटूट विश्वास का प्रमाण है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अद्भुत खासियत है भगवान बद्री नारायण की काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी 1 फुट की वो दिव्य मूर्ति जो शांत भाव से पद्मासन में ध्यान मग्न बैठी है। कहते हैं 8वीं सदी में महान आदि शंकराचार्य को ये मूर्ति अलकनंदा की बर्फीली धाराओं में मिली थी, मानो नदी ने स्वयं इस खजाने को उन्हें सौंपा हो। उन्होंने इसे पास की एक गुफा में स्थापित किया। सदियों बाद 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने पूरे सम्मान के साथ इस मूर्ति को आज के इस भव्य और सुंदर मंदिर में स्थापित करवाया। और ये मंदिर भी कितना अनोखा है। इसकी चमकीली रंगीन दीवारों और 50 फुट ऊंची सुनहरी छत को देखकर आंखें ठहर जाती है। इसकी बनावट इतनी अलग है कि दूर से देखने पर किसी शांत बौद्ध विहार का एहसास होता है ना हैरान करने वाली बात? जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप मिलेंगे। मुख्य मूर्ति के ठीक सामने भगवान के वफादार वाहन गरुड़ देव हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए बैठे हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 15 अलग अलग मूर्तियां हैं, जिनमें धन के देवता कुबेर और देवर्षि नारद भी शामिल हैं, जो इस स्थान की दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। लेकिन इस मंदिर की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, इनकी आत्मा उन कहानियों में बसती है जो हजारों सालों से यहाँ की हवाओं में गूंज रही हैं। पुराणों के अनुसार इसी जगह पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में पूरी मानवता के कल्याण के लिए कठोर तपस्या की थी। और एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली कहानी है कि जब भगवान विष्णु गहरे ध्यान में लीन थे, तब उन पर तेज धूप पड़ने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और उन्हें अपनी शीतल छाया से ढक लिया। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ, यानी बद्री के स्वामी। कहते हैं ये वही पवित्र भूमि है जहां से महाभारत के पांडवों ने अपने सारे राजपाट और मोह को त्याग कर मोक्ष की तलाश में अपनी अंतिम स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। उनके कदमों की छाप आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। जब आप यहाँ होते हैं तो महसूस होता है कि यहाँ की हवा में आज भी भक्ति, त्याग और इतिहास की एक गहरी महक घुली हुई है। पास में ही तप्त कुंड नाम का एक गर्म पानी का सोता है, जहाँ श्रद्धालु मंदिर जाने से पहले पवित्र डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इसका गंधक युक्त पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी एक नई ऊर्जा देता है। अगर आपको बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य मिले तो आप अपने
साथ इस दिव्य यात्रा पर किसे ले जाना चाहेंगे? हमारा वादा है अगली वीडियो में हम आपको एक और ऐसे ही पवित्र धाम के अनसुने रहस्य बताएंगे। उस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बन जाइए।